ओके, सिक्स्थ सेंस रिसर्च एसोसिएशन एंड होलिस्टिक मेडिसिन की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सिक्स्थ सेंस की ओर से वेबिनार चल रहे हैं हमारे, और रोज शाम 5:30 बजे एक नए स्पीकर के साथ एक नई बात के साथ, नए ज्ञान के साथ, नॉलेज के साथ हम आपके सामने आ रहे हैं, और आप सबकी तरफ से बड़ा ही सुंदर प्रतिसाद मिल रहा है। आज हमारे स्पीकर जो है वो एक अलग शख्सियत है। उनके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि उनका जो परिचय है वो सचदेव जी बताएंगे। मगर मिस्टर अरविंदन आज जो शायद आपने नहीं सुनी है, नहीं जानी है, ऐसी बातें हमें बताएंगे। मैं अशोक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनका परिचय दें। Thank you very much, sir. I am Ashok Sajdev. I am happy to introduce Arvindam Arumugam. Arvindam is a very, very famous person who is conducting lot of workshops all over the country. He was born in London in 1971 and has traveled all over the country. He has been associated with Film and Television Institute of Tamil Nadu, where he had received a gold medal for direction and screenplay. He is very innovative and he has shown his practicality in the films which he has produced. After being in association with so many producing films and all that, he unfortunately met with some personal crisis, due to which he was out of film industry. During the period of his rejuvenation took place, he took towards spirituality, studied the Upanishads, and joined them with modern science and modern thinking. Unfolding the mind has been a path-breaking system which he has developed. He has written a book, Why Are We Wired, and has developed good ideas and technique for everybody to follow, understand, and improve, change their life, and bring about a bigger opening in their systems. Look forward to higher frontiers, which will open their minds to greater success, happiness, as well as keeping themselves grounded while the process. I would like to thank Mr. Arvindam for coming over here, and we request you to please take over and share your views, ideas, and teach us something so that it will be of us in future. Thank you. Thank you so much, Ashok ji. Abhi I'll be A little loud. Sound. Can you hear me now? Little loud. सुनाई दे रहा है अभी? हेलो भरत भाई, ओके है? थोड़ा कम है, वॉइस इज लिटिल स्लो। कम है आवाज। एक मिनट टेस्ट कर रहा हूं। Initially when we checked, by that time that was 100% perfect. Hello. I think you log in, log out and log in. I think that will work. Just switching the mic, it should be fine. अभी देखिए
अब थोड़ा जोर से बोलिए. आई थिंक यू जस्ट स्पीक लिटिल लाउडली. जी जी. अभी ठीक है. राइट. Say again. हेलो हेलो, चेक चेक. Yeah, okay. Will do. Okay, so yeah, I will be talking about unfolding the mind. अपने हम कैसे unfold करेंगे, इसके लिए मैं एक जो फोल्डिंग है उसके जगह में मैंने एक सिस्टम डेवलप किया है. अभी एक चीज तो है कि आज तो मेरी भी अनफोल्डिंग हो रही है कि अशोक जी ने बोल दिया कि हिंदी में बात कीजिए. तो पहले तो मेरा भी एक आज एक अनफोल्डिंग हो रहा है. So basically we all have inhibitions. हम सबका एक inhibition होता है, हम सबका एक fixed mindset होता है. जैसे आप सोसाइटी में है, जो भी स्कूल में है, जो और पेरेंट्स फ्रेंड्स, उसके जरिए एक फिक्स्ड माइंडसेट आपके एक माइंड में एक फिक्स्ड माइंडसेट हो जाता है. सो व्हाट डू आई मीन बाय फिक्स्ड माइंडसेट? तो उसको एक हम डेमोंस्ट्रेट करेंगे कि ये फिक्स्ड माइंडसेट को हमें कैसे ब्रेक करना है. So yes, pattern thinking, that was nice. Yes, that pattern is fixed. So how do we make our patterns? How do we make our fixed mind? अभी ये हम हमारे स्क्रीन पे देखिएगा तो एक 20 रुपए का नोट है, राइट? सो यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, इफ आई गिव यू दिस 20 रुपीस, ओके, व्हाट विल यू गिव मी बैक? और व्हाट डू यू थिंक डिड यू बेनिफिट इफ आई गिव यू 20 रुपीस? यू जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स. ब्लेसिंग, या otherwise, in short, when people are still typing, I can still tell you what you're actually blessing, or you're getting a 20 rupee as a gift. Okay, obliged, that's quite subjective. Correct, yes, it is subjective, but basically you're getting something worth 20 rupees. अगर मैंने 20 रुपीज दिया तो आपका ग्रेटिट्यूड भी आप मेजर कर रहे हैं, आपका ब्लेसिंग भी आप मेजर कर रहे हैं कि 20 रुपीज दिया है, राइट? सो अभी ये 20 रुपी नोट भी वही सोच रहा है, ओके, कि मैं 20 रुपी हूँ. तो आप अब ये सोचिए कि ये कैरेक्टर है और ये किरदार है, और ये 20 रुपी क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है कि मैं 20 रुपी हूँ, वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं 500 रुपए हूँ, ओके, और ये भी सोच रहा है कि मैं 10 रुपए हूँ. तो 10 रुपए से वो सुपीरियर है, तो 500 रुपए से इंफीरियर. तो दिस इज आवर माइंड, दिस इज द काइंड ऑफ माइंडसेट वी द ये जो रियल एस्टेट जो पेपर है वो तो सेम है. The sound is not coming properly. There is some echo, I think. There's an echo, not from my end. I think everybody has to mute. Yeah, everybody is muted, I think. Everyone is muted. भरत भाई, आप जरा साइड पे देखो. नहीं, यहाँ से सब muted है. आप खुद अपना म्यूट कर दीजिए ना जरा. Echo गया? नहीं गया. Somebody is receiving properly. It's fine. So, okay. मैं continue करता हूँ. So, अशोक जी ठीक है ना? हाँ, अभी ठीक है. Yes, it's better. It's okay. So now, अभी we will just talk about finance, and we will talk about we'll start with finance, and उसके बाद हम जाएंगे कि ये सिस्टम कैसा है. तो अभी ये कोविड सिचुएशन में आप कहाँ भी हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, आपका खुद का कंपनी है या आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आपको अभी सिचुएशन क्या हो रहा है? ये हो रहा है, राइट? अभी ये फट रहा है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना ये फट रहा है. तो अभी ये फट रहा है तो इसका क्या हो रहा है? इसका डैमेज हो रहा है. आपका फाइनेंस, आपका वैल्यू, आपका सब कुछ डैमेज हो रहा है. ये कितने दिन तक चलेगा? अगर ये एक महीना है, 2 महीना है, तो आप उसको सील कर सकते हैं, इसमें सेलो टेप डाल के सील करके फिर भी चल जाएगा, ऑटो वालों को दे देंगे तो चल जाएगा. अभी मगर ये और कितना देर जाएगा, और चले जाएगा तो क्या होगा? तो 4 महीना 5 महीना जाएगा तो और क्या होगा? तो इसका वैल्यू चला जाएगा, राइट? इसका वैल्यू या इसका ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो ये ऐसा हो जाएगा कि ये 20 रुपए का वर्थ ही नहीं है, मतलब किसी का भी काम की नहीं है, राइट? अभी मैं आपको एक सिस्टम में आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि आप ये 20 रुपए के बजाय आप मुझे इसके 10 गुना ज्यादा आप मेरे को पैसा ही दे देंगे. मैं आपको 20 रुपए दूंगा, आप मेरे को 20 रुपए से एटलीस्ट मिनिमम 10 रुपए से ज्यादा आप दे देंगे.
So let us start the screen share. अब देखिएगा. Somebody has Make to it put on full the screen. audio. Tell me if it's you can see. Sir, make it full screen. Chat box. In your right bottom, there is a button. अशोक जी या कुमार जी, अगर स्क्रीन पे आपका मेरा स्क्रीन शेयरिंग हो गया तो मेरे को एक ये कर दीजिए. स्क्रीन शेयरिंग हो चुका है. शेयरिंग हुआ, लेकिन फुल स्क्रीन कर दीजिए. you can make it full screen. Is it fine? No, Not yet. You can't see it yet. yeah, no, not yet. ठीक है, आने दीजिए. अभी आ गया होगा, राइट? No, sir, sorry. मेरे स्क्रीन में तो दिख रहा है योर स्क्रीन शेयरिंग. अभी तक नहीं आया? नहीं, sorry, sir. ठीक है, मैं वापस स्टॉप करता हूं. स्क्रीन है लेकिन फुल स्क्रीन नहीं है. हाँ, मगर आ तो रहा है ना? फुल स्क्रीन अभी कर. ठीक है, कंटिन्यू चलो. अभी आ तो गया? हाँ, आ गया दिख रहा है. नहीं, फुल स्क्रीन नहीं हुआ, आ रहा है. जी, अभी आ गया? आ गया. Perfect. So I'm starting off my speakers so there's no echo. Okay, so Yes, now it is. process हो रहा है, एक मिनट. So yeah, ये are we losing money during this lockdown? Money, value, spirituality, what is troubling you? हमारा जो mindset है वो trouble हो रहा है. So उसको हम कैसे ये trouble हो रहा है, एक example देंगे. तो अभी एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर देखिएगा. एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर होगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है. जब तक उसमें कुछ लिखा ना जाए उसका एक वैल्यू नहीं होता है. अगर हमने एक पेपर में हमने थैंक यू भी लिख दिया तो उसमें कुछ वैल्यू हो जाता है. नहीं तो वाव लिख दिया या हेलो लिख दिया या लव लेटर लिख दिया, कुछ भी लिख दिया तो एक पेपर में एक वैल्यू आ जाता है जब तक कुछ लिखा जाता है. और अगर हमने उसमें एक लेटर लिख दिया या कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया या करेंसी छाप दिया तो इसका वैल्यू बढ़ जाता है. तो यहाँ पे एक किरदार है जो पेपर है और उसको भी यही चाहिए. जैसे हम सब पैदा होते हैं, हमारा कुछ वैल्यू था नहीं और हमें एक सेल्फ वैल्यू चाहिए, हमको एक रिकग्निशन चाहिए, हमको एक आइडेंटिटी चाहिए और वो भी एक्सटर्नल, बाहर से हमें आइडेंटिटी चाहिए कि हमारा वैल्यू क्या है. तो ये जो ब्लैंक पीस ऑफ पेपर है मेहनत करता है कि उसको भी कुछ आइडेंटिटी मिल जाए. तो उसके ऊपर कुछ प्रिंटिंग हुआ एंड प्रिंटिंग होने के बाद वो एक 20 रुपये बन गया. अभी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके ऊपर एक पूरा एक प्रिंटिंग कर दिया और 20 रुपये उसके बना दिया तो वो एक रिकग्नाइज हो गया. जैसे हमारा जैसे हम एक ग्रेजुएशन ले लेते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन ले लेते हैं या पीएचडी कर लेते हैं तो हमारा एक ये आ जाता, सर्टिफिकेशन आ जाता है, हमारा एक अपलोड आ जाता है कि हमने कुछ कर दिया है और हमारा 5 साल का एक्सपीरियंस या 10 साल का एक्सपीरियंस है. तो इसके वजह से हमें रिकग्नाइज भी हो जाते हैं. तो हम एक विजिटिंग कार्ड किसी को देते हैं और विजिटिंग कार्ड में भी लिखा है कि मैंने ये ग्रेजुएशन किया है, मैं ये पीएचडी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, जो भी हूँ और मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस भी है. तो मेरा कंपनी है या मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ. तो इसका जो वैल्यू है अब देखिए तो वो लेफ्ट साइड में जो सर्कल है जो 20 रुपए जो लिखा है, जो 20 रुपए लिखा है वो एक वैल्यू हो जाता है. तो अभी ये 20 रुपए, अब सोचिए कि उसने एक कंपनी चालू किया तो उसके बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, वो एम्प्लॉय सब 10 रुपए राइट उसके अंडर में है. मगर अभी आप कुछ भी आप काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप देखिए तो एक तो बॉस होगा, बहुत खड़ूस बॉस, और एक खड़ूस बॉस है 500 रुपए. तो वैल्यू हो गया. तो एक बार बहुत परेशान था तो मेरा इतना खड़ूस क्यों है मेरा बॉस. और जब मतलब उसने बातचीत की तो उसको ये पता चला कि मतलब उसके ऊपर भी एक और खड़ूस बॉस है. अभी वो 2000 का बॉस है. अब
तो ये सिस्टम ऐसे चलता है कि मतलब हमारे पूरा एक हायरार्की में बॉस बढ़ जाता है। तो वो बढ़ कैसे जाते हैं, कैसे मतलब वैल्यू उनका बढ़ जाता है, वो जो नंबर है 10, 20, 500, 2000, ये वैल्यू से हम उसको रिकग्नाइज करते हैं। अभी ये 2000 के बाद क्या होगा, इसका बॉस कौन है? अगर इसका बॉस निकला 100, अगर ये $100 निकला, ये अमेरिकन निकला ये सब जैसे कंपनीज होते हैं, जो बॉस होते हैं, जो अमेरिकन कंपनीज होते हैं या सॉफ्टवेयर कंपनीज होते हैं, उनके बॉस अमेरिकन होते हैं, राइट? हमारा भी वैल्यूएशन ऐसे ही होता है। तो जब कोई अमेरिकन आ जाता है, हमने किसी ने ग्रेजुएशन किया और उसने ग्रेजुएशन किया अन्नामला यूनिवर्सिटी से और उसने सीए पास किया। अगर किसी और ने सीए पास किया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, अभी उसका वैल्यूएशन बढ़ गया। दोनों ने ग्रेजुएशन तो एक ही किया, मगर कहाँ से किया उससे वैल्यूएशन बढ़ गया। तो अभी आप देखेंगे तो ये $100 जो है ये 2000 से भी ज्यादा बढ़ गया। दोनों का एरिया तो सेम ही है, मतलब दोनों का सबका ब्रेन तो एक ही है, मगर हम मेंटली वैल्यू कर लेते हैं कि किसका माइंडसेट कौन बड़ा है या कौन छोटा है। अभी इसमें क्या हुआ, अभी लॉकडाउन की वजह से जब हम पैसा लूज कर रहे हैं तो बॉटम में जो है उन्हीं को इफेक्ट होता है। तो अभी एकदम बॉटम में इनका जो एम्प्लॉइज, आपके एम्प्लॉइज जो हैं, बहुत सारे कंपनीज ये सोच रहे हैं कि किसी को ले ऑफ करना है, तो ये डैमेज हो गया। ये 10 रुपए जो है डैमेज हो गया। अगर डैमेज हो जाता है तो क्या हो जाता है, आप एक लिफाफे में डाल के बैंक में डाल देते हैं और बैंक में वो जो आर्मरी होता है, आई मीन जो वहां पे जाके डैमेज या सॉइल नोट्स करके एक आर्मरी होता है, वहां पे चले, तो वो 10 रुपए तो गया, मतलब वो वापस सर्कुलेशन में नहीं आ सकता है। तो ऐसा हो गया। तो ये अगर आप बॉस हैं और आपके एम्प्लॉय या कोई है जो इस लेवल पे चला गया कि उसका कैरियर ही गया, तो आपकी क्या हालत होगी। तो वैसे ही हमारा 20 रुपए जो है उसकी भी हालत यही हो गई कि उसने बोला तो मुझे तो एक ब्रेक चाहिए यार, मुझे ये तो बहुत बुरी बात है कि ये लॉकडाउन की वजह से मेरे बहुत क्लोज एम्प्लॉयज बहुत क्लोज है और उनको मतलब छोड़ना पड़ा, जॉब छोड़ना पड़ा, कैरियर ही छोड़ना पड़ा। तो ये एक ब्रेक लेने के बाद उन्होंने क्या किया, उसने एक बोट ले लिया और उसने सोचा कि मैं कहीं चले जाऊँ, और वो गया एक आइलैंड। अभी एक आइलैंड में जाने के बाद उसको पता चला कि अभी ये आप किसी ने सोचा नहीं होगा कि 20 रुपये के अंदर भी एक आइलैंड है। अब वहां पे देखेंगे तो उसमें वहाँ ट्रीज है, वहां पे एक लाइट हाउस है। आप पीछे देखेंगे कि अभी ये तो आपने नोटिस किया ही नहीं कि आपने यही देखा कि 20 रुपए, राइट, जो नंबर साइड में है, मगर अंदर क्या है। तो दैट इज योर सर्चिंग फॉर योर सेल्फ। तो ये 20 रुपए अपने फाइंड किया कि एक आइलैंड में जाके पता किया कि ये आइलैंड है नॉर्थ बे आइलैंड। तो आप अगर अंडमान निकोबार में जाएंगे और वहां पे रॉस आइलैंड में जाएंगे तो वहां से आप देख सकते हैं नॉर्थ बे आइलैंड कहाँ है। और नॉर्थ बे आइलैंड एग्जैक्टली जो वहां पे स्केच है वो दिखेगा आपको, वो लाइट हाउस है वो आपको दिखेगा। और तब पता चलेगा कि नहीं, आप 20 रुपए नहीं है, इसमें इतना बड़ा हिस्ट्री है। और यहाँ पे रॉस आइलैंड में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्ट किया था और पहली आर्मी स्टार्ट किए थे और पहली इंडियन फ्लैग यहीं पे हुई और ब्रिटिश सेटलमेंट पहले नॉर्थ बे आइलैंड में हुआ था। तो तब आपको पता चला कि नहीं, आप सिर्फ 20 एक नंबर नहीं है। ओके, आप एक आधार कार्ड या आप एक पैन कार्ड, आप नंबर नहीं है। ओके, नंबर तो आपको शॉपिंग मॉल में मिलता है। आप एक ऐप देंगे उसका एक बार कोड होता है, तो हमें भी बार कोड बना दिया, कोई बार कोई हम नंबर है मगर हमें वो नंबर से बाहर निकालो, वो नंबर हम नहीं है। तो ये जो 20 रुपए है वो उसी आइलैंड पे गया। वहां पे गया तो उसने बहुत सारे फॉरेनर्स जो है अच्छे अच्छे क्यूरियस आइटम्स ले रहे। जब वो ले रहे थे तो उन्होंने ये लिया, तो उन्होंने ये बहुत अच्छी तरह, ये एक ओरिगामी ज्वेलरी है जो हमने खुद बनाए। तो ये एक ओरिगामी ज्वेलरी वहां पे मिल रहे। अभी अगर चैट बॉक्स दिखेगा तो आप मेरे को हाँ, चैट बॉक्स में मेरे को टाइप कीजिए अब इसका वैल्यू क्या होगा। अगर आपको ये खरीदना है तो इसका एमआरपी कितना होगा। ये बहुत ब्यूटीफुल ज्वेलरी है जो हमने ओरिगामी से बनाई है, उसको अच्छी से हमने वार्निश किया और वो जो और बहुत सारे डिजाइन है। तो आप मेरे को ये बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगा।
1400 मिस्टर प्रभात ने बोला है 1400 ज्वेलरी की। सब लोग टाइप कीजिए कितना होगा ये। 1000 रुपीज डॉक्टर प्रतिमा जी। अशोक सचिव ने बोला है 500 रुपए, और किसी ने बोला 300 रुपए, 1200। हाँ बहुत अच्छी तरह से, बहुत 100। ओके, बहुत सारे वैल्यू आ रहे हैं। तो हमारे जो ज्वेलरी कलेक्शन है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाते हैं। स्क्रीन को ब्लैंक हो गया क्या स्क्रीन? नहीं बराबर है। Depending on the material, the cost would increase or decrease. Depending on the material, yes, perfectly right. But हमको एक वैल्यू तो हमको मिल गया। ये मतलब 300 रुपए से लेके 1400 रुपीज तक सब लोग बोल रहे हैं। तो हाँ, इसी के वैल्यू हम रखते हैं कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आप कोई भी आर्टिफिशियल, इट इज नॉट अ रियल ज्वेलरी, इट इज ऑब्वियसली आर्टिफिशियल ज्वेलरी के इसमें आता है। तो उसके इसमें आपने बोल दिया कि 300 रुपए या 1000 रुपए, दैट इज करेक्ट। हमारा एमआरपी भी 300 रुपए में स्टार्ट होता है और उसी रेंज पे जाता है। नाउ कैन यू सी माय स्क्रीन, बिकॉज़ आई एम गेटिंग अ ब्लैंक स्क्रीन। It is blank. Okay, I think it's processing. Just one second. I think you log out and log in again, because the sound is also sometimes echo is coming in between. Let me do that. So, I do that. just checking my audio. Check my audio. Yeah, okay. Lovely. जी सब दिख रहा है? Yeah. Yes. Okay, so सबने मेरे को बोला 300 रुपए। मेरा जो ये 20 रुपए जो था, उसने इन्हीं ज्वेलरी को पूछा कि मैं भी बन सकता हूँ क्या ये ज्वेलरी? तो उन्होंने बोला हाँ क्यों नहीं। तो उसने भी वो भी एक ट्यूलिप बन गया। ओके, और वो भी अपना वो ज्वेलरी का एम्बेलिशमेंट्स हो गए, और वो भी he also got sold. Now even if we take, अगर जो आपने मिनिमम प्राइस यहाँ पे बोला है 300 रुपए और किसी ने बोला 1400 रुपीज, तो एक 20 रुपए का अभी बिक गया 300 रुपए। ये बिगिनिंग में एटलीस्ट 10 गुना ज्यादा, मतलब मैंने बोला था कि 200 रुपए 10 गुना ज्यादा, मगर 10 गुना ज्यादा नहीं, ये तो 1000 गुना ज्यादा हो गया। राइट, लाइक इट हैज बिकम 25 टाइम्स और 50 टाइम्स। नाउ ये करने के लिए उसको क्या करना पड़ा? राइट, उसको ये करना पड़ा कि प्लीज म्यूट अदर्स। ये मुझे करना है कि होस्ट को करना है? Ashok ji, do I have to mute? No, you don't have to mute. You please continue. Hello. Please continue. I think Ashok ji has to mute himself. You want me to mute? अभी आपको पता चला Yes. कि ये 10 गुना या 1000 गुना ज्यादा बन गया, राइट? तो इसको होने के लिए आपको क्या हुआ? आपको पहले ये आपको ब्रेक करना पड़ा कि ये कि आप 20 रुपए नहीं, आप 20 रुपए से ज्यादा है, राइट? सो ये दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। सो इससे हमने एक प्रिंसिपल किया है, वो है 3691। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ ये 3691 क्या है, और ये मॉडल हमने, और ये मॉडल जो हमने किया है, ये कैसे हमने सिस्टम पैदा किया है। तो ये है एक आपने बचपन में किया होगा, आपने छोटा सा एक मॉडल करके रेड ब्लू ग्रीन येलो कौन सा नंबर आपको चाहिए, ऐसे ऐसे खेला होगा सबने स्कूल में। तो ये जो येलो कलर का वहाँ पे मॉडल है 4 वाला, ये तो सबने स्कूल में तो किया होगा। अभी जो मैंने किया है वो 4 वाला नहीं है, मगर 3 वाला है, और इट इज
कॉल्ड अ सॉल्ट सेलर, मतलब इसमें आप सॉल्ट डाल सकते हैं, राइट। तो अब इसमें देखेंगे तो 3 एसेंशियल सॉल्ट है, और ये है रेड वाला जो है वो है 3 एसेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। तो हमारा 3691 जो सिस्टम है वो स्टार्ट होता है 3 कॉन्फ्लिक्ट्स, 6 क्वोशंट्स, 9 मेंटल मॉडल्स एंड 1 क्वेस्ट। यही हम आपको अनफोल्ड करके दिखाएंगे। तो पहला जो है 3 सॉल्ट, तो 3 सॉल्ट माने द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है रेड वाला मैन वर्सेस मैन, आपको लेफ्ट में दिखेगा। ब्लू वाला जो है मैन वर्सेस नेचर, एंड येलो वाला जो है मैन वर्सेस सेल्फ। और वो सॉल्ट में आप देखेंगे तो सैलरी, सेवर, सब्सटेंस। इसी को आप हमारे वैदिक शास्त्र में देखेंगे तो 3 एसेंशियल चीज जो है आपको जो हमें चाहिए वो है अर्थ, कामा, धर्म। और ये आपको मैं अर्थ इज फाइनेंशियल फुलफिलमेंट, कामा डिजायर फुलफिलमेंट, एंड धर्म मॉरल फुलफिलमेंट। तो आप मेरे को मेन स्पीकर मोड में नहीं रखेंगे और मेरे को फुल स्क्रीन में देखेंगे तो आपको और दिखेगा। तो मॉडल जो है ऐसा है, ये मॉडल है जो हम इसको हम एक्चुअली ये है 3 कॉन्फ्लिक्ट। इसको हम खोलेंगे तो आपको मिलेगा 6 क्वेश्चंस, और इसको हम फर्दर खोलेंगे तो आपको मिलेगा 9 इंटेलिजेंस या 9 मेंटल मॉडल्स एंड 1 क्वेस्ट, 1 स्पिरिचुअल क्वेस्ट। तो सबका बेसिकली थिंग यही है कि ये अभी ये में 3 कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ से आ गया, राइट। अगर आप हिंदू शास्त्र में देखेंगे तो हमारा शास्त्र इतना डीप है कि मतलब हम अद्वैता द्वैता की बात करते हैं। तो अद्वैता देखो तो अभी द्वैता मतलब टू इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एनी फॉर्म ऑफ मैटर वो है द्वैता। अगर और इसमें क्रिएशन में ये बोला गया कि अद्वैता से द्वैता है। अब द्वैता मतलब एकांता से नहीं आया, सो इट डिडंट कम फ्रॉम वन, और शून्य से भी नहीं आया, इट डिडंट कम फ्रॉम जीरो। So 2 did not come from 1, 2 did not come from 0, 2 came from Advaita, not 2. अब ये not 2 क्या है, वो 0 भी नहीं है 1 भी नहीं है। तो इसी के क्वेस्ट में लगे गए हैं। इफ यू टेक द CERN इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स और सब जगह यही गए हैं कि गॉड पार्टिकल क्या है, व्हाट इज दिस प्रिवेलिंग। सब जगह जो एनर्जी है, हमको ये मालूम तो है कि स्पेस में इतना सारा जगह है और इतना सारा एनर्जी है, मगर ये एनर्जी का मेजर नहीं कर पा रहे हैं, हमको ये ऑरिजिन भी नहीं पता चला कि ये कहाँ से है, राइट। सो अब इतने बड़े फिलॉसफी जो हिंदू फिलॉसफी है, तो उनको ये जब इतना बड़ा फिलॉसफी है, ये मनी कहाँ से आ गया। हमने ये कहाँ से बता दिया कि देयर इज अ गॉड फॉर मनी, लक्ष्मी, और देयर इज अ गॉड फॉर नॉलेज, सरस्वती। तो नॉलेज भी टैंजिबल है, हमको ये कैसे पता कि किसका नॉलेज ज्यादा है, किसका नॉलेज कम है, दैट इज आल्सो वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग। सेकंड इज पावर, व्हिच इज पार्वती। सो आप ये देखेंगे तो जो क्रिएटर, प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा, मेन गॉड्स। एंड बट इफ यू सी ब्रह्मा, उनका 4 सर है और वो अंडर वाटर में है, वो एक लोटस में बैठे हुए हैं और वो मेडिटेट कर रहे हैं, सो रहे हैं। और वो लोटस जो है, विष्णु जो सो रहे हैं एक सांप के ऊपर अंडर वाटर, उनके नेवल से जो लोटस है, ओके, वहां पे विष्णु भी सो रहे हैं, मेडिटेशन। और शिवा डिस्ट्रॉयर है, वो भी -70-80 डिग्रीज में, ओके, मतलब एकदम कम क्लोथ्स और टाइगर के स्किन में वो वहां पे, वो भी मेडिटेशन पे है, वो भी सो रहे हैं, ओके। सो द क्रिएटर, प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर सब सो रहे हैं। तो आप इसको एक एनालॉजी बनाइए, तो हम जो मेन हैं एक चीज में घुस जाते हैं और सो जाते हैं जब तक उनके वाइफ आके उनको फोन नहीं करते कि हेलो कल बच्चे का स्कूल का फीस भरना है, तब तक ये आदमी उठेगा नहीं तब आदमी उठेगा। सो दैट इज व्हाई यू सी there is 2 kinds of truths, the subjective truth and objective truth. Objective truth जो है, it is the real truth,
ओके, बट इट इज वेरी बोरिंग, उसमें कहानी नहीं है। ओके, मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, आप चैट बॉक्स में मेरे को आंसर करिएगा। सवाल ये है कि द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, इज दिस a true answer or not? The sun rises from the east. Not true. Rotation from east to west. Just give me true or false. False. इसकी explanation की जरूरत नहीं है। Sun rises from the east. True या false? खत्म। Okay, so I am getting true and get one odd answer of false, but mostly I am getting true. Very good. Okay, क्योंकि हमें जब हम थर्ड स्टैंडर्ड में थे, हम फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में हमको बोल दिया गया है कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, खत्म हो गई बात। अभी जब हम 8th स्टैंडर्ड में चले गए, ओके, तो हमको ये बोला गया कि सन एक्चुअली doesn't rise from the east. Okay, it is the earth which is rotating and we feel that the sun is rising. So this is called a cognitive dissonance. मतलब हमारा एक मिक्स्ड मॉडल हो जाता है, उसके बाद एक और ट्रूथ आता है, बोलते हैं वो ट्रू नहीं है, ये ट्रू। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, हमारा मेंटल जो वायरिंग हो जाता है ये कंफ्यूज हो जाता है। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। जब आप छोटे थे, आपकी मम्मी ने बोला था बेटा यू शुड नेवर टेल लाइज, झूठ कभी मत बोलना, राइट? तो ये आपको फिक्स हो गया जब आप बहुत छोटे थे। उसके बाद फोन आया तो मम्मी ने बोला अरे उसको बोल देना कि मैं नहीं हूँ। अब जब छोटा बच्चा मतलब कंफ्यूज हो गया, बोला मम्मी ने बोला है कि मम्मी बोल रही है कि मम्मी नहीं है। Because naturally you want to tell the truth, मम्मी ने आपको बोला है कि ट्रूथ बोलना है, और ये पता चला कि मम्मी बोल रही है झूठ बोलने के लिए। पर उसके बाद आपको पता चलता है ये एकदम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, एक ग्रे एरिया है, कुछ झूठ बोल सकते हैं। So that is a cognitive dissonance. That is a place which is a gray area, trying to understand. The brain tries to rewire, right? So, abhi now, yeah, we all agree that sun doesn't rise from the east, right? Okay, so that is a false. But अगर हम सब अभी ये पूरा सिक्स सेंस ग्रुप हम ग्रैंड कैनियन गए और अशोक जी हमको लेके गए, सुबह 4:30 बजे हमें उठना है, और वहाँ अगर आपको अपना कैमरा लेके आना है और आप सेल्फी ले सकते हैं पूरा ग्रुप ग्रैंड कैनियन में। जब ब्यूटीफुल सनराइज आएगा, ओके, हमें सेल्फी लेना है। आप अपना कैमरा लेके आएंगे कि नहीं, या सेलफोन लेके आएंगे कि नहीं? अभी जिसने भी फॉल्स बोला उनका कैमरा अलाउड नहीं है। ये प्रॉब्लम ये है कि ये जो it is a false, but there is beauty in this false. So what we are living in a subjective truth. The entire subjective truth is Maya, और इसमें beauty है, okay. But objective truth is very boring. So now if you see this model, ये हम जब अंदर जाएंगे आपको मिलेगा objective truth, the real spiritual truth, okay, of what we are talking about. मगर अभी के लिए जो आपको जीना है, आपको अपना रेंट देना है, आपको अपना खाना करना है, लॉकडाउन में जो भी आपको जो प्रॉब्लम्स हैं, ये 3 कॉन्फ्लिक्ट हैं। आप इसको ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि इट इज लक्ष्मी एंड इट इज सरस्वती एंड इट इज पार्वती। नाउ आई विल टेल यू हाउ दीस सॉल्ट्स वर्क, राइट? सो अगर आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, तो ये रेड, ब्लू, येलो आप माइंड में रख लीजिए। ओके, फर्स्ट सॉल्ट जो है रेड में, ओके, वो है सैलरी या फाइनेंस या लक्ष्मी, राइट? तो ये जो वर्ड है सैलरी, वो एक वर्ड से आया सेलेरियम। तो उस जमाने में सॉल्ट जो था, सॉल्ट माइनिंग मतलब नॉर्मल जो सॉल्ट माइनिंग था, वो बहुत रेयर था। सॉल्ट मिलना ही आपको बहुत आसान काम नहीं था। अभी तो आप ऑर्डर कर लेते हैं, आपको होम डिलीवरी मिल जाती है। सॉल्ट उस टाइम में बहुत डिफिकल्ट था, और सॉल्ट बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल। तो इसीलिए जब हम बोलते हैं कि किसी को अपने पैसे दिए और वो छोड़ के भाग गया, आप बोलते हैं नमक हराम, मेरे पैसे खा लिए, या बोलते हैं नमक हलाल या नमक हराम। तो ये नमक कहाँ से आ गया? बेसिकली वो जो फेथ है आपने उसके ऊपर डाला है, जो पैसे का फेथ है, वही वो दैट बिकेम सैलरी, दैट बिकेम फाइनेंशियल फुलफिलमेंट, राइट? अभी दूसरा जो है ब्लू वाला, वो है, इसका जो रेड वाला है आप वो क्वांटिफाई कर सकते हैं। आपका टर्नओवर कितना है, आपका कौन सा कार है आपके पास, आपका कौन सा घर है, कितने पैसे हैं आपके पास, सब कुछ ये रेड में आ जाएगा, प्रॉपर नंबर आ जाएगा।
मगर ये जो ब्लू है वो एक इमोशन है। सेवर जो है वो इट्स ए टेस्ट। तो अभी लॉकडाउन में लॉट ऑफ पीपल जो है ये बोल रहे, मतलब आपने ये व्हाट्सएप में तो देखा होगा कि आई मेड मैगी यार, आई मेड खिचड़ी, स्पेशली मैन, ओके, पहली बार कुकिंग कर रहे हैं किचन में जाके, ओके, सो और वो इतना प्राउडली अपना डिश को पब्लिसाइज कर रहे हैं, राइट। अभी ये जो डिश है उनको रेसिपी मिला, ओके, नेट से उन्होंने ढूंढ लिया और रेसिपी मिल गया। अभी वो रेसिपी में सब कुछ आ गया, मतलब कितना हल्दी डालना, कितना चिली पाउडर डालना है, कितने जो भी डालना है वहाँ पे, दाल चावल जो भी उसमें डालना है, एकदम सब कुछ मैशर में आ गया। मगर एक चीज नहीं आई, उसने बोला स्वाद अनुसार नमक, या चुटकी भर नमक। अभी किसकी चुटकी, मेरी चुटकी या आपकी चुटकी, और कितना किसका स्वाद, अभी ये तो आपकी वाइफ को मालूम है, आपको आपकी मम्मी को तो मालूम है, और हर शेफ को मालूम है। आपको ये प्रैक्टिस करना होगा कि कितना नमक, क्योंकि ये नमक आप डालते हैं वो कभी कोई भी पूरे वर्ल्ड में आपको नहीं बताएंगे कितना नमक डालना, वो यही बोलेंगे स्वाद अनुसार। तो ये आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आएंगे। वो एक इमोशन है, वो एक आर्ट है, इट इज हाउ यू कनेक्ट विथ नेचर। सो एनी काम जो आप कर रहे हैं, आपका जो कनेक्शन है नेचर के साथ, कनेक्शन है, उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो ये ब्लू में आ गया। सो दैट इज टेस्ट, दैट्स द इमोशन ऑफ व्हाट यू वांट टू डू। तो लास्ट वाला जो है वो है सेल्फ या मॉरल कनेक्शन, लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। आप क्यों कर रहे हैं वो जो काम कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं। सो ये आप इसके लिए एक एग्जांपल ये है कि नॉर्मली आप देखेंगे तो एक ही चीज होगा, आप पहले आपका एक व्हाट आर यू डूइंग, दिस ब्लू आएगा और बोलेगा व्हाट आर यू डूइंग या व्हाट डू यू वांट। हमें कुछ चाहिए तो हम बोलेंगे ठीक है, हमें इंडिपेंडेंट होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एजुकेट होना पड़ेगा। तो आप स्कूल, तो हाउ आर यू डूइंग इट, आपको स्कूल जाना पड़ेगा। उसके बाद ओके हमें इंजीनियर बनना है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो इंजीनियर क्वालिफिकेशन होगा। तो सब पूरा जिंदगी व्हाट और हाउ में चलता जाएगा, कि आपको जो भी व्हाट आएगा तो उसका एक हाउ या तरीका इसका है, इसका कैसे हम लेके आए, उसी में आ जाएगा। आप एक समय ऐसे आएगा कि आपका एक मिड लाइफ क्राइसिस आ जाता है, राइट। सो एक क्राइसिस आ जाता है कि व्हाई एम आई डूइंग दिस, ओके, वो क्वेश्चन आता है थोड़ा मैच्योरिटी के बाद। तो आप एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि जब इंडिपेंडेंस हुआ था और गांधी ने देखा था कि ब्रिटिशर्स मतलब सॉल्ट के लिए वो टैक्स कर रहे थे, तो उस टाइम में वो बहुत गुस्सा हो गया, बोला कि हमारा खुद का जो जमीन है उसके सॉल्ट, उसके नमक के ऊपर टैक्स। तो उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह का मूवमेंट चालू किया और पूरा पहले तो एक छोटा सा ग्रुप था, उसके बाद लाखों लोग आ गए और उन्होंने एक दिन के लिए सॉल्ट बनाया। और वो एक दिन में आपको इमेजिन, ये काम ये ऐसा है कि आपको ब्रिटिशर्स वहीं पे मारने वाले हैं, कुछ लोग तो मर जाएंगे, कुछ लोग जेल जाएंगे, मतलब आपको उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मगर वो व्हाई इज सो स्ट्रांग, वो जो स्पिरिचुअल क्वेस्ट या धर्मा इज सो स्ट्रांग, इट डज नॉट नीड मनी। किसी ने पे तो नहीं किया, गांधी ने इनको पैसे नहीं दिए, ओके, इनको इमोशनली कनेक्ट किया कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें रिवोल्ट करना है। So if you find your why, then yes, automatically everything comes in place. So अभी ये हमें आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हेलो, यस, ओके, ठीक है। तो तो अभी मैं खुद का स्टोरी बोलता हूँ कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ लास्ट 30 ईयर से, बड़े बड़े सेट में काम कर चुका हूँ। एंड मैंने लास्ट 25-30 ईयर से उसी में फील्ड में हूँ। और मैं आई एम द फर्स्ट मोशन कंट्रोल कैमरा ऑपरेटर। ये जो बड़ा सा रोबोट है वो साइड में, वो बड़े बड़े सेट्स में यूज होते हैं और उसको मैं ऑपरेट करता हूँ। मैं पहले मेरा लंदन में ट्रेनिंग हुआ था इसको ऑपरेट करने के लिए। तो मैंने ऑलमोस्ट 15 पिक्चर कर लिए विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर, और खुद का एक मैंने डायरेक्ट भी कर लिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे ताना जी में वो जो क्लाइमैक्स शॉट है उसमें हमने ये इक्विपमेंट यूज किया था और काफी फिल्म्स हमने कर चुके हैं।
अभी एक चीज ये हुआ, मैं 2011 में मेरी जो पर्सनल जर्नी है, मैं अपना खुद का फिल्म कर रहा था, और खुद के फिल्म करने के टाइम पे 90% खत्म होने के बाद मेरी मदर को स्ट्रोक हो गया था, और उनके लेफ्ट हेमिस्फीयर में एक स्ट्रोक हुआ, फिर राइट हेमिस्फीयर में हुआ, फिर कार्पस कोलोसम में हुआ, फिर उसमें टीबी आ गई और मेनिंजाइटिस हो गया। सो जब तक मतलब पूरे आईसीयू में थे 45 डेज के लिए, और जब तक वो डिस्चार्ज होके घर में आए तो घर में हमें पूरे वेजिटेटिव स्टेट में थे, और हमें एक हॉस्पिटल टाइप का खोलना पड़ा। बेसिकली आरटी ट्यूब, फॉलर बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सब तमाशा था। 12 आवर की नर्स थी, और ये जो फाइट हो रहा था 45 डेज के लिए, मैं एडिटिंग रूम जाता था और फिर हॉस्पिटल भी जाता था। इसी बीच में हमारे और प्रोड्यूसर के बीच में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुए, और लीगल इश्यूज हो गए। लीगल इश्यूज में मतलब फेवर तो मेरे फेवर में आ गया, मगर फिल्म रुक गई। फिल्म रुकने के बाद मेरी जो एक्स वाइफ है, उनसे मेरे डेथ हो गया, तो मेरा पैसा भी कम हो गया, तो उसमें भी सब एक ही साल में हुआ मेरा। तो अभी कोई और होता मेरे पॉजिटिव एनर्जी के बगैर, तो मतलब एकदम डिप्रेशन में चले जाते। अभी इसके बाद क्या हुआ कि वो सेपरेट हो गए, हम और मेरा वाइफ सेपरेट हो गए, और उसके बाद मेरा जो राइट हैंड था उसमें मुझे एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा। मतलब नॉट फिजिकल शॉक, आई फेल्ट शॉक। तो मैं अपने डॉक्टर के पास गया, फिर ऑर्थोपेडिक के पास गया, उन्होंने बोला मे बी गोल्फर्स एल्बो, मे बी टेनिस एल्बो। तो लास्ट में उनको पता चला कि मीडियन नर्व एंट्रैपमेंट, ये जो फिंगर है उसमें वो ट्रैप हो गया था मेरे ये एल्बो में, और वो कंप्यूटर ठीक से नहीं यूज किया, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी हुई, तो उसमें ये जो हो गया था, उन्होंने बोल दिया कि मुझे कंप्यूटर यूज ही नहीं करना है, मतलब बैन हो गया था मेरे। तो और 8 महीने तक मुझे कंप्यूटर वाज बैन, और उन्होंने बोला कि आपको मतलब 2 हाथ से काम करना होगा, 2 हैंड एक्टिविटीज। अभी फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले मैं वाटर कलर पेंटिंग, पेन एंड इंक, फार्मिस्ट्री, प्रकाश का मॉडलिंग पेपर है, इसके मॉडल आप देखेंगे तो एक ही पेपर है। तो नो साउंड, आपको साउंड क्या आ रही है ना? जी जी, यस सर। ओके जी। Very complex model. This is Ronald Coase model. I'm just showing you some of the masters origami. और सब एक ही पेपर है। ये पेपर का साइज होगा आपका कॉरिडोर का साइज, एंड फाइनल मॉडल आपको होगा इतना बड़ा। सो इट्स अ एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स मॉडल। ये ब्रायन चायन करके एक sir, tell me again from hand working. Yeah, we will come to that in a question and answer session. So let me just finish the presentation and we'll have an end question and we can address. So ये आप मॉडल देखेंगे तो it's like almost to scale. This is a scientist in MIT जिन्होंने फोल्ड किया है। This is the most complex model, Satoshi Kamayasu, and this is by a French artist, and he's done this. So yeah, that is the craft. The craft has gone really complex in many ways. So अभी मैं science application भी दिखाऊंगा. The satellite wing has been folded by an origami scientist. आपका जो एयर बैग है, जो कार का एयर बैग है, वो 0.6 सेकेंड में आपको खुलना चाहिए, एंड वो भी एक ऑरिगामी साइंटिस्ट का ही काम है। एंड सेकंड है ये जो रोबोट्स जो हैं, दीज आर सेल्फ फोल्डिंग रोबोट्स, रेडियो एक्टिव एरिया में अपने आप खुद कंप्रेस होके खुल जाते हैं। एंड मेनी ऑफ द आर्किटेक्चरल थिंग्स आर डन बाय बायोमिमिक्री। हमने मतलब बायोलॉजी को स्टडी करके मटेरियल का स्ट्रेंथ इंप्रूव करना, मतलब उसमें कुछ ऐड नहीं करना है। उसमें भी आप देखेंगे तो बहुत सारी ऑरिगामी की एप्लीकेशन है। और ये इंसेक्ट्स को स्टडी करेंगे। दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स साइंसेस देयर इन एमआईटी एंड इंजीनियरिंग। अब बी और अदर इंसेक्ट्स को देखेंगे तो इतना थिन उनका विंग है,
अगर उनका प्रोपेशन फोर्स इतना ज्यादा है, अगर ये हम अभी तक ट्राई कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा वेट, इतना थिन विंग, और वो कैसे फ्लैप हो रहा है, कैसे ये होता है, ये हमने अभी तक पता नहीं किया। मतलब बहुत सारा रिसर्च चल रहा है। अगर ये पता हो गया तो हमारा एयरक्राफ्ट का जो टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी है, पूरे बदल जाएंगे। तो एक तो क्राफ्ट और साइंस में इतना डेवलप हो गया। तो मेरा ये जो हुआ था कि मैं खुद मम्मी के स्टेट के कारण मैं बहुत पढ़ने लगा, और मैंने ये एसोसिएट किया ऑरिगामी और पेपर फोल्डिंग और फिलोसफी कैसे कर सकते। और जब मैं करने लगा तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग मेरे को बुलाने लगे कि आप मतलब वर्कशॉप कीजिए हमारे लिए। तो मस्ती मस्ती में करने लगा, उन्होंने मेरे को पैसे भी दिए। तो मैंने बोला ये क्यों इतने पैसे, तो मतलब तो उसके बाद पता चला कि ये मैं क्राफ्ट नहीं सिखा रहा हूँ, मगर उसकी जो एसोसिएशन है, ब्रेन की एसोसिएशन है, वो सिखा रहा हूँ। तो फिल्म इंडस्ट्री में भी रिक्वायरमेंट्स आ गए कि ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉडल करने जो फिल्म के स्टोरी में थे। तो ये एक बिग बाजार का कमर्शियल था, उनका एक टॉवल फोल्डिंग करना था और उसको एक मैन जैसे लगना चाहिए, मगर वो ऐसा लगना चाहिए टॉवल रखा हुआ है, और वो उन्होंने एनिमेट किया। तो उसके बाद काफी पॉपुलर हो गए कॉर्पोरेट हाउसेस में, और बहुत सारे इवेंट्स, कॉलेजेस एंड कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स। तो मैंने एक कोचिंग सिस्टम फॉर्म की है, इट इज कॉल्ड ऑरिगामी ट्रांसफॉर्मेशन कोचिंग, जो 3691 जो सिस्टम है। तो जो भी कहीं पे भी अटका हो, जैसे मैं अटका था 2011 में, और मेरा जो माइंड है मैं खुल गया और मैं इतना रिसेप्टिव हो गया चीज के लिए, मेरा एक अलग से कंपनी भी फॉर्म हो गई कि ऑरिगामी सिस्टम से। सो आई टेक यू फ्रॉम अ फिक्स्ड माइंडसेट टू अ ग्रोथ माइंडसेट। मतलब एक्सटर्नल चेंज एक बात, आ जाते हैं और हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, तो ये एक्सटर्नल चेंज है। मगर एक्सटर्नल चेंज के बाद हमें इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन में काफी, तो हमारा लास्ट सिस्टम जो है वो 9 मेंटल मॉडल्स है, जो मतलब टॉप लीडरशिप जो यूज करते हैं। तो वो हमारा लास्ट में बहुत सारा हमें पेंटिंग करना पड़ता है, मगर हम पेन यूज नहीं कर रहे हैं, हम माउस यूज कर रहे हैं। तो एक्चुअली आप फिजिकल बॉडी देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो उसके लिए वो नर्व एंट्रैप हो जाता है। तो टू हैंड एक्टिविटी आप जब भी ड्रमर्स देखेंगे, परकशनिस्ट देखेंगे, उनको नहीं होता ये प्रॉब्लम। ये कंप्यूटर लोग के लिए, मतलब जो भी कंप्यूटर में आईटी और ग्राफिक्स में काम करते हैं उनको आता है। तो या सो आई हैव टू, जब मैंने ऑरिगेमी किया था तो आई रीट्रेन्ड माय मसल्स to get back like an alternate medicine to get my back into normal. Second is we could what exactly is done in mind unfold session you conduct. So yeah, so could you please repeat what is 3691, which is probably same question. 3691 you have discussed 3. What about 6 and 9? So yeah, that is just because of lack of time. Otherwise, this would consume quite a lot of time. 3 is conflicts. 3 conflicts जो मैंने बताया, जो अर्था, कामा and dharma. That is the 3 conflicts. It's also which you call the 3 salts. If we go further, you see the same red color here. It's intelligent quotient, and emotional quotient, and spiritual quotient. And the combination of that is physical quotient, creativity quotient, and adversity quotient. So ये 6 quotients होते हैं। इन 6 क्वेश्चन में हमारा ये होता है कि एक क्वेश्चन हमारा अच्छा है और एक क्वेश्चन हमारा अच्छा नहीं है। तो हम उसके 30 डे का ट्रेनिंग करते हैं कि वो क्वेश्चन हमें बढ़ाना है। तो जो भी हमारा वीक क्वेश्चन है हम उसको बढ़ाते हैं और उसकी कॉम्बिनेशन देते हैं। दैट इज द 6. The 9 of course is more further mental models. So this would be a lack of time. These are very long engagements. So anybody who wants to connect with me, want to know more about this training methodology, please connect with me offline, and I would tell you more about it. It's obviously more like a demo session than giving you a training session. Kindly repeat objective and subjective concept. Yes. Okay. So Nilima, that is, yeah, that's there is 2 kinds of truths, which are either subjective truth or objective truth. Now, objective truth is when you move out of subjectivity. मतलब अगर हम एक box के अंदर हैं, तो we will not be able to know the truth if we are inside the box itself.
Like for example, when we are in this earth, और हम earth के अंदर हैं, it is very difficult to know what is happening in the cosmos or what is happening outside. So, and the same issue is, so you will need some theorems and validation instruments, और इनके साथ हम measure करके हम एक postulate करते हैं theory. So that is how there is a theory and that is an objective truth if it is repeatable. अगर ये repeat हो जाता है, it becomes a truth. Like for example, Newton, you say 9.8 is the gravity. Okay, but okay, there are certain areas. Is it really 9.8? Yes, there is a point of discussion, but the averaging out, it is 9.8. We universally agree 9.8 is gravity. Okay, so this becomes an objective truth. But now, what is subjective truth of gravity? Okay, subjective truth is if there are certain objects which may not form, cannot be tested. It is in parascience where it does not obey gravity in certain ways, in certain areas of the earth. So that becomes a subjective truth. So subjective truth is always something we don't know. It's a blur between science and parascience. So, and we are inside that. So that's a blur area. We have time. Host, please clarify. Okay, what exactly we do to overcome financial problems? That is by Prabhat Srinivasan. So yes, see what is financial problem? Okay. If you have any kind of problem, that is, if you have a financial problem, या आपके पास emotional problem है, या आपके पास spiritual problem है. These are the three connections. But ये कोई problem अगर आपके पास आए तो problem कहाँ से आ रहे हैं? वो प्रॉब्लम यहाँ से आ रहे हैं कि एक फिक्स्ड माइंडसेट है, आपका एक गिवन कंडीशनिंग है. जब आप कहाँ से पैदा हुए थे, आप कहाँ से आए थे, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, लाइक और आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, वो पास्ट एक्सपीरियंसेस क्रिएट अ होल्ड ऑन यू. एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. लाइक इमेजिन आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने कभी बिजनेस किया नहीं है. उसके बाद आपने पहली बार किसी को, मतलब आप भी एम्प्लॉई हैं, उसके बाद आप पहली बार एक स्टार्टअप ट्राई कर रहे हैं. स्टार्टअप करने के बाद अपने एक फ्रेंड आपको मिले और उसने बोला कि मेरे को पैसे चाहिए. आपने उसके पैसे दिया और उसने रिटर्न नहीं किया, और ये आपके हुआ जब आप स्कूल में थे. अब ये छोटा सा जो मेमोरी है, ये आप होल्ड कर लेंगे और आप ऐसे रखेंगे कि आपको ट्रस्ट नहीं आए. तो इसके कारण क्या होगा, आप बिजनेस के रिस्क नहीं ले पाएंगे, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे. ये छोटा सा एक मेमोरी ब्लॉक आपके पास है जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है. सो आपको ये माइंडसेट आपको पहले ब्रेक करना है कि ओके, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो वन ऑफ एक्सपीरियंस था. हर लोग ऐसे नहीं होते कि पैसे नहीं रिटर्न करते. कुछ लोग को हम ट्रस्ट कर सकते हैं, कुछ सिस्टम्स को हम ट्रस्ट कर सकते हैं. तो पहले आपको वो इनहिबिशन ब्रेक करना है. तो ऐसे हमारे बहुत सारे पास्ट एक्सपीरियंस हैं जो हमको होल्ड करते हैं, हमको एक फिक्स्ड मॉडल पे लेके आया. तो वो फिक्स्ड मॉडल से हमें ग्रोथ माइंडसेट पे जाना है. फिक्स्ड माइंडसेट पे ग्रोथ. तो उसके तो if you break your mindset, you will not have financial problems, and for which your spiritual mindset should be very anchored. That means, just like I showed you that model, in order to get your red and blue in place, matlab emotion in place and finance in place, you need to be having your moral in place. What is your moral? Because the yellow controls blue and red. What is your moral? What is your spiritual connection with the morality? Any other questions? We are free to answer. Please do type in the chat box for questions. अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो उसे चैट बॉक्स में टाइप कीजिए. Thank you so much, Prabhat. I'm glad you liked it. Bharat bhai, you please give a vote of thanks. किसी के और कोई प्रश्न नहीं है तो इसके साथ आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करेंगे. एक आखिरी पहले कर दो. मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा. एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आया. Morality is tradable commodity these days. How to build trust? Yes, okay.
This is by Mr. VV. Okay, how do we build trust? That's a very good question. So trust, आपको now I give you a simple example. Okay, basically you cannot trust anything or anyone in today's condition. At the same time, there is no life without trust. You in an auto, how do you know that this auto driver will take you to the position where you want? You are trusting him. Okay, he is turning the meter and he is taking at auto driver is taking you from A point to B point. How did you trust him? You don't know him. He's a complete stranger. So trust is a system, but at the same time, it is a small trade-off. You know that you're going in a place which you know. Abhi same thing, imagine you're going in France and you're going a new taxi driver. Now you don't know, you can't trust him because you don't know the place, know the person. You are completely in a zone where you're not comfortable. Your trust becomes smaller. But if you're in Bombay, you've been born and brought up in Bombay, ek auto driver hai, and it's also daytime or night time. Are you man or you woman? What are your past experiences? Who's sitting next to you? Now the trust gets built. So trust gets built by a community. Trust gets built by your social community, and trust also builds. This also forms your spiritual quotient. If you increase your spiritual quotient, obviously your trust will be better. So yes, that is answered there. Which treatment helped you from paralyzed right index fingers? Super thanks for your wonderful organization. Yeah. Okay, the treatment which happened in the, we had a nerve conductivity test which was done, and after that I had to go into ultrasound and TNS, which is a proper physiotherapist method. So every alternate day हमारा physiotherapy हुआ. Besides that, origami was a set of finger exercises because I have to do regular folding. So all these together, it was a combination of regular physiotherapy as well as origami. I used origami as a method, help my coordination better. Yes, in a lot of alternate medicine, suppose I used Ayurveda and all that, but I'll have to go to Kerala, I'll have to sit there for 1 year. You'll not be allowed to touch the mouse at all, and उसमें बहुत सारे कठिन treatments होते हैं. That will be probably better. Trusting autolog and can we have balance stability in life and improve our business? Yeah, so we are going to more deeper questions. I guess everybody is pretty excited. So yeah, so I will just put my number and my email address there. So if these questions will probably go on, so you can probably take it offline. I'll just put my number there. So that's my number, and please share your brochure which you had given to us to all the participants. Okay, lovely. Okay, fantastic. So उसमें तो होगा ही. That is our practice. Okay, that's fine. That's right. So yeah, so I think you can take it offline. So, Mr. Kumar, you can yeah. take. So Sixth Sense Research Association and Holistic Medicine की ओर से मैं बी कुमार, अशोक सचदेव जी, डॉक्टर कौशल और डॉक्टर जलपा शाह, आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं. आप सबके सपोर्ट से ये वेबिनार कंटिन्यूस चल रहे हैं. हर रोज शाम को 5:30 बजे हम एक नए स्पीकर के साथ आपके सामने आते हैं. आज के इस सुंदर कार्यक्रम के लिए एक नई चीज एक जानने के लिए जो हमें मिस्टर अरविंदन से मिली है, उसके लिए हम सब इनका शुक्रिया अदा करते हैं. अरविंदन जी जो फाउंडर ऑफ अरविंदन आरोग्यम के हैं, और हमारी तरफ से उनको और उनके इस अरविंदन आरोग्यम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस. Thank you so much. Thank you so much. आप सबका भी शुक्रिया. और कल के हमारे जो स्पीकर है वो है डॉक्टर अमिता पारेख, जो रेकी और हीलिंग के बारे में हमारे से बात करेगी. रोज की तरह कल भी शाम 5:30 बजे सब यहीं पे मिलेंगे. ये लेक्चर्स की सीरीज, जो वेबिनार की सीरीज चल रही है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को बताइएगा और उन सबको भी हमारे साथ जोड़िएगा.
ताकि मैक्सिमम लोगों तक हर तरह के अलग अलग नॉलेज पहुंचे और जब जिसको जो जरूरत है उस नॉलेज का वे सारे लोग फायदा उठा सके। इसके साथ आज का ये सेशन यहीं पे हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू वंस अगेन। शुक्रिया अशोक जी एंड कुमार। थैंक यू मिस्टर अरविंदन। थैंक यू ऑल। Thank you, Mr. Arvind.